So today we're going to study the next chapter, जो क्या है? The next chapter is data center, backup and recovery. Small सा chapter है ये. Okay. So let's see first of all. First of all, we need to see what is data center. Okay. Data center क्या होता है? उसके components क्या होते हैं? वो सब देखते हैं. So what is data center? So a data center is a dedicated facility, okay, having an organizational critical infrastructure that is needed and server, storage systems और network equipment and power या फिर cooling system जो needed होता है to run a server. उसके लिए जो भी components needed होते हैं वो provide करता है data center within one infrastructure. Okay, so लिखेंगे a data center is a dedicated facility. It's a dedicated facility housing an organizational organization's critical IT infrastructure. और IT infrastructure क्या क्या होता है? जो भी IT infrastructure needed होता है to run a data center, एक data center हाउस करता है उन सबको. और कौन कौन से IT infrastructure होते हैं इसमें? जैसे कि सर्वर्स हो गए, ओके, स्टोरेज सिस्टम हो गया, कूलिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स हो गए, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स एंड पावर. ओके, सो ये सब प्रोवाइड करता है डेटा सेंटर. सो वन कैन से दैट इट इज अ फिजिकल बैकबोन. इट इज अ फिजिकल बैकबोन फॉर फिजिकल. It's a physical backbone for digital operation. Okay, backbone for digital operation. So whenever we hear the name of data center, हम यही सोच रहे हैं कि जहाँ पे डेटा वगैरह स्टोर किया जाता है, that is called as data center. But data center is more than only data storage system. It provides servers, storage system, cooling system, networking equipment और power भी. Okay, so let's see various components of data center. So we have various components of data center, जैसे कि compute हो गया. इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू रन एप्लीकेशंस. ओके, जो रनिंग एप्लीकेशंस होते हैं उनको सर्वर प्रोवाइड करता है एंड इट प्रोसेसेस द डेटा. राइट. So compute we have seen. So next is storage. So what is storage? Like various type of storage are there. Storages are there in a data center like disk arrays. Okay, SSD हो गया, tape libraries हो गया. Okay, these are the storage systems that are present. Okay, and ये किस काम आते हैं? For data retention, ताकि डेटा को रिटेन किया जा सके. So question could be like, which component of data center manages storage or helps in retention of data? That is storage. So next is networking. So various switches or routers present होते हैं for connectivity. और इसी में firewalls भी present होते हैं जो security के काम आते हैं. Firewalls. Okay. So next is power. Like generators हो गए, PDUs हो गए for uninterrupted supply. Uninterrupted supply.
ताकि कभी भी डेटा सेंटर आइडल ना हो और हमें प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करता रहे. सो देन नेक्स्ट component is cooling system. Various cooling system are present like HVAC, chillers और hot and cold aisle present होता है which help in cooling. Also physical security is also present. और फिजिकल सिक्योरिटी किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, जैसे कि बायोमेट्रिक्स हो गया, बायोमेट्रिक्स, सीसीटीवी या फिर एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस, ओके, पासवर्ड्स वगैरह इसमें क्या आ गए, पासवर्ड्स, ऑथराइजेशन वगैरह आ गया इसमें. सो दीज वर सम की कंपोनेंट्स. नाउ लेट्स सी रिडंडेंसी कॉन्सेप्ट देखते हैं. अब रिडंडेंसी क्या होता है, अगर एक फेल हो जाए, इफ वन फेल्स, ठीक है, तो हमें दूसरे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है. सो दैट इज कॉल्ड एज रिडंडेंसी. राइट. अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास कार में एक एक्स्ट्रा टायर पड़ा रहता है. कार हैज वन एक्स्ट्रा टायर ऑलवेज. ओके. 99% ऑफ द टाइम हमें उसकी नीड नहीं होती, बट जब कार का कोई भी टायर फेल हो जाए, ठीक है, तो हमें उसका टायर की नीड पड़ती है, तो हम यूज कर लेते हैं. सो हमारे पास कुछ रिडंडेंसी मॉडल है, जैसे एन हो गया, मॉडल्स, लेट्स सी मॉडल्स n+1. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी एन में क्या होता है, हमारे पास क्या हो गया, वी हैव एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, व्हाट वी नीड, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो गया, जब फेल हो जाएगा एक मॉडल, तो हमारे पास कुछ भी कहीं पे भी शिफ्ट होने के लिए कोई भी प्रेजेंट नहीं है दूसरा मॉडल. राइट. तो इसका यूज केस कहाँ हो गया, जैसे नॉन क्रिटिकल सिस्टम्स जो होता है, या फिर कॉस्ट सेंसिटिव एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है. सो नेक्स्ट इज n+1. सो एग्जैक्टली वन कंपोनेंट इज एक्स्ट्रा, वन एक्स्ट्रा कंपोनेंट. ओके. सो इसका अप टाइम होता है 99.9%. Okay, so this is mostly for enterprise data centers. We use this for enterprise data centers. Data centers. Okay. So next is 2N. 2N में क्या होगा, fully duplicated system will be present. Fully duplicated infrastructure will be present. In 2N, a fully duplicated infrastructure will be present, and the uptime in this is 99.99%. Okay. This is used for critical या फिर फाइनेंशियल डेटा सेंटर्स हो गए, या हेल्थ केयर के लिए यूज हो गया ये, या फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिस वी यूज. ओके. नाउ देयर इज वन मोर, 2N+1. सो इसमें फुल्ली डुप्लीकेटेड भी होगा, पूरा का पूरा डुप्लीकेट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, प्लस देयर इज वन स्पेयर कंपोनेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट. ओके. सो अप टाइम ऑफ दिस विल बी 99.99%. सो द मैक्स अप टाइम वी हैव इज 2N+1. Alright. This is used for critical, that will be like mission critical data centers. ओके. या फिर आर्मी के डेटा सेंटर्स हो गए, या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के. वी कांट अफोर्ड टू फेल, जहां पे ऐसा सिस्टम आ जाए वहां पे वी नीड दिस टाइप ऑफ मॉडल. ओके. सबसे कम अप टाइम किसका होता है, एन वाले मॉडल का. एंड विद एन इंक्रीजिंग कंपोनेंट क्या करता है, हमारा अप टाइम इंक्रीज करता है. नाउ लेट्स सी सम टाइप्स ऑफ डेटा सेंटर. टाइप्स ऑफ डेटा सेंटर. Okay, so we have 5 types of data center. कौन कौन सी टाइप्स होती हैं डेटा सेंटर, वी हैव एंटरप्राइज,
which is also known as hyperscale. The next one is colo. We called it colo, but इसको कोलोकेशन भी बोला जाता है. Next is managed service data center. Managed service data center. Next is cloud, or the last one is edge. So these are the types of data center. Let's see. इनकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम. क्या हो गया? So enterprise data center will be owned and operated by enterprise itself, organization या enterprise itself. Okay. For example, हमारे पास गूगल का डेटा सेंटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया. These are some example of hyperscale या enterprise data center. Who uses it? Large टेक कंपनीज हो गया, जिनका रिलायंस पूरा डेटा सेंटर्स पे होता है, दे यूजेस इट, या फिर बैंक्स. सो द नेक्स्ट वन इज कोलोकेशन. कोलोकेशन क्या हो गया? वी रेंट, इन दिस वी रेंट स्पेस इन प्रोवाइडर्स फैसिलिटी. ओके. कोलोकेशन में वी रेंट स्पेस इन प्रोवाइडर्स फैसिलिटी. ओके. बट वी हैव अवर ओन सर्वर. सर्वर हमारा अपना होता है, पर हम रेंट करते हैं फैसिलिटी. ओके. वेयर वी कैन प्लेस आवर सर्वर and have data center or all the services. Next है who uses it? Mid-size companies हो गई, mid-size companies या फिर SaaS providers, software as a service providers. Okay. So the next one is managed data center. अब managed data center में क्या होता है? इसमें provider will own the facility and they will only manage the services. सर्विसेज और फैसिलिटी भी प्रोवाइडर से, जो डेटा सेंटर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वही मैनेज करते हैं, और फैसिलिटी भी उन्हीं की होगी. ओके. द सर्विसेज एंड इक्विपमेंट्स आर आल्सो मैनेज्ड बाय देम. कंपोनेंट्स जो होंगे डेटा सेंटर के, वो खुद मैनेज करता है. और ये कौन यूज करता है? जो द कंपनीज विदाउट आईटी स्टाफ. कंपनीज विदाउट आईटी स्टाफ. For example, there'll be a big company or big trading company, suppose. Okay, they don't have IT staff. उनके पास कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कोई डेटा सेंटर मैनेजमेंट सर्विस का स्टाफ नहीं है उनके पास. तो वो क्या करना चाहते हैं? डेटा सेंटर पूरा लेना चाहते हैं कहीं और से, डेटा सेंटर की सर्विसेज पूरी लेना चाहती हैं. सो दे गेट ऑल द फैसिलिटीज, सर्विसेज एंड इक्विपमेंट दे ऑल्सो दे मैनेज. ठीक है. तो ये कौन सा हो गया? मैनेज सर्विस सेंटर्स. उसके बाद कौन सा है? क्लाउड. So it's a fully virtualized shared infrastructure. Fully virtualized shared infrastructure. यहाँ पे क्या होगा? जो भी डेटा सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो क्लाउड पे तुम ले लोगे, तो उससे क्या होगा? पूरा virtualized क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा तुम्हें. फॉर एग्जाम्पल वी गॉट AWS या एजोर हो गया. ओके. फिर यहाँ पे क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जिसमें होता है, वो इसमें आता है. फिर ये कौन यूज करते हैं ज्यादातर? स्टार्टअप्स एंड वेरिएबल वर्कलोड्स, जिनके पास वेरिएबल वर्कलोड हो. ओके. So the next one is edge. Edge is a small distributed facility. It's a small distributed facility close to users. Okay. जैसे कि 5G या फिर IoT हो गया. Right. These are the, ये कहाँ पे यूज किए जा सकते हैं? ऑटोनोमस व्हीकल पे, व्हीकल एंड स्मार्ट सिटीज में. ओके. They are close to users, so easy to access.
जैसे 5G हो गया, IoT डिवाइसेस हो गई, these are the example of cloud. So ये था type of data center. I hope this much is clear. So next most important question is likely to be asked from this part only, that is data center tiers. Data center so redundancy हमने ऊपर देखा, so उसी के बेस पे we got 4 tiers. So what these 4 tiers do? These tiers define expected availability. Expected availability based on infrastructure redundancy. जो भी हमारे पास n मॉडल हो गया या n+1 वगैरह मॉडल हो गया, उसके बेसिस पे जितनी हमारे पास रिडंडेंसी है उसमें किस तरह से अवेलेबल होते हैं रिसोर्सेज, उसके बेसिस पे इन टीयर्स में डिवाइड किया जाता है. सो हम टेबल बनाएंगे एक, टीयर्स नेम अवेलेबिलिटी, इसके बाद हो गया डाउन टाइम, एंड द डाउन टाइम ओवर हियर इज पर ईयर. ठीक है, एक साल में कितना डाउन टाइम होता है वो है. उसके बाद रिडंडेंसी एंड की, दिस इज रिडंडेंसी की फीचर्स. So let's see, we got first year, second year, third year and fourth year. Let's see now. First year को हम नाम देते हैं बेसिक, ओके, एंड इसकी अवेलेबिलिटी कितनी होती है 99.671%. ओके, सो डाउन टाइम वी हैव इज 28.8 आवर्स. पहले टेबल देख लो फिर इसको एनालाइज भी करेंगे. So we got redundancy, that is none. We don't have any redundant resources over here in tier 1. Okay, so the key feature, the important feature that is notable over here is it have single paths for power and cooling. Okay, in this we have single path for both power and cooling. All right, so the next one is redundant component. Tier 2 is known as redundant component. Okay, so the availability over here will be 99.741%. The availability increases only, so 99.741%. So downtime over here will be 22.0 hours. This is per year. Okay, so redundancy is partial, और partial redundancy कौन सी होती है n+1, right? So in this also single path, and another feature that is need to be noted is we have redundant component over here. ठीक है, redundant component over here. Redundant component present होता है इसमें. Next is concurrently available. जो tier 3 है, tier 2, tier 1, these are not important, but इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, concurrently. हमें याद रखना है tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. इसकी अवेलेबिलिटी क्या होती है, डाउन टाइम क्या होता है, रिडंडेंसी क्या होती है, और फीचर्स इसके याद रखने इनके. ठीक है, वी डोंट नीड टू रिमेंबर बेसिक की अवेलेबिलिटी क्या होती है, रिडंडेंट की अवेलेबिलिटी क्या होती है, वो दैट इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी नीड टू सी फॉर श्योर. सो concurrently maintainable. So tier 3 को क्या बोला जाता है, concurrently maintainable, and availability is 99.982% of this. So इसका डाउन टाइम जो है 1.6 आवर्स होता है per year. Okay, so डाउन टाइम भी डिक्रीज हो रहा है. Okay, so redundancy इसका we have full redundancy. Okay, that is 2n. Okay, and we got dual path for it, dual path for cooling and power, so it will be better, right? It will be better cooled and better power will be provided to it. So इसमें maintenance, one more feature that is need to be remembered in tier 3 is it maintain itself without downtime. Okay, so next one is tier 4. So this is also called as fault tolerant. So the availability in this, you need to note this, 99.995%. Okay, 99.995%. Okay, so downtime इसका बहुत कम है, जैसे 26.3 minutes. Okay, per year. And we got full
फुल्ली रिडंडेंट होगा 2n या फिर 2n+1 भी समटाइम्स, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, फुल्ली डुप्लीकेटेड प्लस वन एक्स्ट्रा कंपोनेंट. So the features that are needed to be remembered is everything is duplicated. Everything in here is duplicated. Okay. Any component can fail. Another feature is any component can fail. But हमारे पास क्या है? Everything is duplicated, so we need not to worry. So let's see. Let's analyze this table. हमारे पास redundancy क्या होती है? Tier 1 से Tier 4 तक बढ़ती है, right? इसमें क्या होता है? Partial redundancy होता है ये. Sorry, Tier 1 में none होती है. Tier 2 में partial redundancy, that is n+1, and Tier 3 में 2n, that is fully redundant, और Tier 4 में 2n+1. And availability भी देखो increase करती है, right? Every time we go down, availability increase करती है and down time decrease करता है. And which one will be the best? That is Tier 4. And what Tier 4 we use for it for? Military या फिर एयर ट्रैफिक हो गया, वहां पे जहां पे हमें ऑफ टाइम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते. सो दिस इज डन. चलो थोड़ा फिजिकल लेआउट भी देख लेता है कि डेटा सेंटर का फिजिकल लेआउट क्या होता है. सो द फिजिकल लेआउट वी गॉट वाइट स्पेस, वन इज वाइट स्पेस एंड द अदर इज ग्रे स्पेस. ओके. अब ग्रे सॉरी वाइट स्पेस में क्या होता है? जहां पे सारे आईटी इक्विपमेंट्स लिव, वेयर आईटी इक्विपमेंट्स लिव. ओके. और ग्रे स्पेस में क्या होता है? सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो ग्रे स्पेस में होता है. सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके. लाइक वी गॉट पावर, कूलिंग. ओके. अब आईटी इक्विपमेंट में कैसे हो गए? सर्वर्स जैसे या स्टोरेज. एमसीक्यूज किस टाइप के बन जाए कोई पता नहीं होता, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. व्हाइट स्पेस में क्या होता है? आईटी इक्विपमेंट होता है, सर्वर, स्टोरेज. और ग्रे स्पेस में क्या होता है? सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि पावर हो गया, कूलिंग हो गया. ओके. लेट्स सी आगे. पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है डेटा सेंटर का. पावर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्लो देखता है. सबसे पहले वी गॉट यूटिलिटी ग्रिड, जहां से पावर जनरेट होकर आती है. यूटिलिटी ग्रिड. देन वी हैव ट्रांसफॉर्मर, जो सर्च प्रोटेक्शन के काम आते हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग्स और एनी नेचुरल अकरिंग. सर्च प्रोटेक्शन, सर्च प्रोटेक्शन. उसके बाद लगे होते हैं स्विच गियर्स. स्विच गियर्स. वी गॉट ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म, ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच ओवर हियर. स्विच. ओके. उसके बाद हमारे पास आता है अनलिमिटेड पावर सप्लाई. अनलिमिटेड पावर सप्लाई जो बैटरी बैकअप के थ्रू चार्ज होता है. बैटरी बैकअप लगा होता है जिससे चार्ज होता है. फिर आया पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट. ओके. देन सर्वर, PSU, power supply unit. So this is power infrastructure unit. So the function of utility grid is to provide, it's a primary source of power. Primary source of power. Okay. And next is ATS का क्या होता है function primary? It switches between utility या फिर generator. It switches between utility and generator. Okay. उसके बाद जो PSU होता है इनमें, it converts AC to DC, alternating current to direct current. Okay. So power infrastructure में this much is enough to see. We have utility grid with transformer, switch gears, UPS, PDU और server PSU. और ATS का काम क्या होता है? It switches between utility and generator. In utility grid, we have primary source of power. So now let's see cooling system.
क्या होता है, द सर्वर, जो सर्वर है बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, जनरेट्स अ लॉट ऑफ हीट। ओके, एक सपोज करो एक सिंगल रैक है जो सर्वर का, दैट कैन प्रोड्यूस ओवर 30 to 50 किलोवाट ऑफ हीट। ओके, ये ऐसे ही होगा जैसे कितने 10 से 15 ओवन्स चल रहे हो एक ही रूम में। ठीक है, सो इस वजह से हमारा कूलिंग सिस्टम क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। ओके, चलो उसके बाद देखते हैं पावर यूजेज इफेक्टिवनेस। यूजेज इफेक्टिवनेस, कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी, उसको टोटल फैसिलिटी पावर को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय आईटी इक्विपमेंट्स पावर। ओके, इक्विपमेंट पावर। राइट, सो द थिंग इज, हमारे लिए अगर 1.0 आएगा ये रेशो तो दैट इज परफेक्ट। ओके, और हमारे लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो प्रोवाइडेड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दैट इज सिमिलर टू 1.5। ओके, इस रेशो की जो वैल्यू 1.5 आएगी दैट इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। एंड वन मोर थिंग यू कैन सी, गूगल एवरेज क्या है जो गूगल ने बताया गया है, गूगल के डेटा सेंटर्स में जो गूगल यूज करता है दैट इज 1.1। ओके, this is little bit beyond our syllabus, but maybe MCQs can come from this also. Okay, so quickly कुछ कूलिंग टेक्नोलॉजीज भी देख लेते हैं। Okay, some cooling technologies let's say that are used। एक हो गया कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनिंग, या फिर हैंडलर भी बोलते हैं ऐसा। नेक्स्ट है इनडोर कूलिंग, इनके बारे में विल सी। इनडोर कूलिंग, देयर इज अदर विच इज कॉल्ड रियर डोर हीट एक्सचेंजर, रियर डोर हीट एक्सचेंजर। उसके बाद लिक्विड कूलिंग भी आता है, एंड वन मोर इज देयर दैट इज फ्री कूलिंग। ओके, अब इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल एसीज वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, या फिर रेज्ड फ्लोर कूलिंग होती है। कुछ कीवर्ड नीडेड टू रिमेंबर, रेज्ड फ्लोर कूलिंग और इसके फुल फॉर्म क्या होगी, कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनर या फिर हैंडलर। ओके, ये ज्यादा नहीं देखना है, बस कीवर्ड्स देख लेते हैं। इनडोर कूलिंग क्या होगा, ये क्लोज टू, इट्स क्लोज टू हीट सोर्स, इट इज प्लेस क्लोज टू हीट सोर्स, और इट इज इन बिटवीन द रैक्स, इन बिटवीन द रैक्स, जहां पे वेरियस स्टोरेज सर्वर वगैरह प्लेस किए जाते हैं। फिर रेयर डोर कूलिंग क्या होगा, रेयर डोर कूलिंग, इसमें क्या होता है, लिक्विड कूल डोर होता है ऑन द रैक बैक, इट कैप्चर्स exhaust heat। Okay, and liquid cooled doors are used in it, liquid cooled doors। Okay, so next one is liquid cooling, इसमें इमर्शन कूलिंग होगी। बस ये कीवर्ड याद रखो कि इमर्शन कूलिंग कहीं पे आ गया दैट इज लिक्विड कूलिंग, या फिर लिक्विड कूल्ड डोर्स या फिर एग्जॉस्ट हीट कैप्चर आ गया दैट इज रियर डोर हीट एक्सचेंज। और इनडोर कूलिंग और वो हमने देख लिया। ओके, एंड वी कैन रिमेंबर वन मोर कीवर्ड इन दिस, डायरेक्ट टू चिप। इसमें मैं आगे इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा वो, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। फ्री कूलिंग में क्या होता है, वी यूज आउटसाइड एयर, आउटसाइड एयर स्लैश वाटर। ओके, सो नाउ let's see two most important data operations, two most important
डेटा सेंटर ऑपरेशंस. ओके, सो इनमें क्या होगा? वन इज डीसी आई एम, आई एक्सप्लेन. अनदर इज रिमोट हैंड. So what is DCIM? It's data center infrastructure management. ओके, एंड रिमोट हैंड्स के अंदर क्या आता है? जैसे रीबूट सर्वर्स हो गया, रीबूट सर्वर्स. ओके, दैट इज डन इन रिमोट हैंड operations and replacing failed drivers, replacing failed drivers. ओके, और नेक्स्ट कौन सा हो गया? इन रिमोट हैंड ओनली वी चेक इंडिकेटर लाइट्स. ओके, और DCIM में क्या आएगा? जैसे पावर कंजम्पशन, विल मैनेज पावर कंजम्पशन इन दिस. इस ऑपरेशंस में पावर कंजम्पशन मैनेज किया जाएगा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मैपिंग की जाएगी, एंड ह्यूमिडिटी मैपिंग, ऑल्सो कैपेसिटी प्लानिंग. जैसे क्या हो गया? पावर कैपेसिटी, स्पेस कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी वगैरह किसमें? डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में आता है. ठीक है, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा सेंटर ऑपरेशंस. सो नाउ लेट्स जंप टू बैकअप. डेटा सेंटर में इतना वो आता है. सो नेक्स्ट इज बैकअप. व्हाट एग्जैक्टली बैकअप इज? Backup is a copy of computer data. Okay, such as of files or the content. Okay, a copy of computer data. ये मरियम वेबस्टर की definition है. Okay, so backup will be a copy of computer data such as of files or content. Let's see now why do we need backup. बैकअप पे जंप करने से पहले देखते हैं वाई बैकअप की जरूरत क्यों होती है. सो लेट्स सी. अब क्या होता है? जो रैंसमवेयर अटैक होता है, रैंसमवेयर अटैक हमने पढ़ा है. क्या होता है रैंसमवेयर अटैक? कि कंप्यूटर को की फाइल को इनकरप्ट कर दिया जाता है और रैंसम डिमांड किया जाता है टू गेट द एक्सेस अगेन. सो अब क्या होता है? 89% ऑफ दिस डेटा इज नॉट नीड टू बी रिमेंबर्ड. बस हमने देखना है कि वाई वी नीड बैकअप. सो 89% ऑफ रैंसमवेयर